Hello friends, this is Saurabh Saxena and I welcome you all on the online platform of Kalyani IAS Academy Indore. Dear friends, as we all know that this year of 2021, this is a very good year for all the aspirants of Madhya Pradesh Civil Services examination, since all the aspirants they have two notifications this year for 2020 and for 2021 also. So in this year we are going to have two preliminary examinations and two mains examinations. So I also give my all the good wishes to the aspirants of 2019 mains examination. My all the good wishes are with them since they have to face their examination in the month of March itself. So we also know that we have a revised syllabus of 2020 and accordingly we have to face the examination of 2020 and 2021. So in my previous lecture I have discussed the syllabus of 2020 for the particular subject of Indian polity and Indian constitution. And I have told you in my previous lecture that I'll be starting this subject with the Union Parliament. As we know that previous to this topic we have the Charter Acts of 1919 and the Charter Act of 1935 also in our syllabus. But if we are going to start with the Union Parliament, then I think that first of all we would be able to understand the structure of Union Parliament, the Union Government, the central government, and then we'll move on to the state legislature and we will try to understand all the structure which is there at the state government level. After that we'll try to understand the structure at the local government level. We'll study everything about panchayats, municipalities, etc. Then we'll move on to the union and its territories, about citizenship, about the fundamental rights, about the directive principles of state policies, etc. So my dear friends, this is my way of teaching the Indian polity and Indian constitution. So as I have told you that I'll start this subject with Union Parliament of India. My dear friends, regarding Indian constitution, that it is the supreme law of the land. It is above all the laws of the land. That is why it is known as the supreme law of the land. Our constitution contains the provisions. Say, if I talk about Article 52, then it says that there shall be a President of India. So it is one of the provision of our Indian constitution. So if I talk about other laws such as Indian Penal Code or CRPC, Criminal Procedure Code, or Civil Procedure Code, etc., then these laws contains sections. These laws contains rules in the subsequential sections. But the Indian Constitution contains provisions. So all the articles they contains respective provisions. So this is about what our constitution contains. It contains provisions, etc. So as I have told you that I will be starting with the Union Parliament. So here, my dear friends, I want to ask you the very basic question that what consists of Union Parliament? So it consists of the President at the top and we have two houses of Parliament, that is one is Lok Sabha and another one is Rajya Sabha. So ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनियन पार्लियामेंट. सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एट द टॉप एंड वी हैव टू अदर हाउसेज, वन इज लोक सभा एंड अनदर वन इज राज्य सभा. सो आवर प्रेसिडेंट, ही इज नोन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ही इज ऑल्सो नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट. सो व्हेन आई से दैट ही इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट, तो यहाँ हमको ये बात समझना होगी कि यहाँ हेड ऑफ द स्टेट से क्या मतलब होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट which is given in our Article 12.
So it defines state as the Parliament of India, as the government of India, the state government, the state legislature, legislature of states, the local government, or any other authority in the territory, within the territory of India or under the government of India. तो जैसा कि हमने देखा है कि प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट, तो यहाँ स्टेट से मीनिंग आपको ये जो हमारे स्टेट्स होते हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इससे आपको नहीं लेना है. हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, और हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो आई होप दैट मैंने आपको ये डेफिनेशन या ये जो हेड ऑफ द स्टेट होता है इसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर पाया हूं. इफ आई टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर, देन ही इज सेड टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द स्टेट अगर आपसे पूछा जाए, देन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर आपसे पूछा जाए द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देन आपको क्या लगा करके आना है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो व्हाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेड टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? तो दोस्तों, जैसे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जीतती है वो अपनी सरकार बनाती है. तो जो पार्टी मेजॉरिटी में जीतती है, ही इज सपोज टू elect his leader, and the leader of the majority party, he is appointed as the Prime Minister of India by the President of India. So that is why the Prime Minister is said to be the head of the government. So when I talk about the union, then we have to discuss about the part 5 of Indian Constitution. So the part 5 of the Indian Constitution deals with the union executive, the union legislature, the union judiciary, and the Comptroller and Auditor General of India. So we are going to study all the topics in detail in our respective lectures. So what consists of union executive in India? So it consists of the president, the Council of Ministers, the Vice President of India, the Attorney General of India, and the respective articles or the affected articles, they are from Article 52 to Article 78. So when I talk about the Union Legislature of India, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, so it consists of Parliament. So Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha. So the affected articles in case of Union Legislature, they are from Article 79 to Article 122. So in case of Union Judiciary, the affected articles are from Article 124 to 147. And in case of Comptroller and Auditor General of India, the affected articles are articles from 148 to 151. So this is what the structure of Union Government of India. So it consists of legislature, executive, and judiciary. In case of legislature, it consists of Parliament with Lok Sabha and Rajya Sabha as two houses of Parliament. Then if I talk about executive, then it consists of President, Vice President, Prime Minister and his Council of Ministers, and Attorney General of India. Then third one is judiciary, then it consists of Supreme Court, High Court, and so on. So try to remember the structure of the Union Government of India. Then let us start with the President of India. So in case of President of India, Article 52, it simply says that there shall be a President of India. भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए. सो आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए. नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 53. सो आर्टिकल 53 सिंपली सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन दे आर वेस्टेड इन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या बोलता है आर्टिकल 53? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन दे आर वेस्टेड इन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ फ्रेंड्स,
व्हाट आर एग्जीक्यूटिव पावर्स, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन लिखा हुआ है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इस आर्टिकल को। इट रीड्स एज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, दे आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So first question comes here कि what are executive powers? Now dear friends, the very basic thing which I want to explain you कि the executive powers they are not defined in the Constitution of India. One thing is there, we cannot give the clear cut definition of executive powers. हम इसकी clear cut definition भी नहीं दे सकते हैं। Even in one of the judgment of the Supreme Court has delivered that the clear-cut definition of the executive powers cannot be given. लेकिन एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, एक और वर्डिक्ट आया था, and in the respective judgment the Supreme Court has said that the residual of the legislative powers and judicial powers they are what? The executive powers. तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में क्या कहा है कि जो रेजिडुअल होता है, रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, जो बचा हुआ है, रेजिडुअल ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स दे आर व्हाट? द एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स को हटा दें तो जो भी शेष शक्तियां बचेंगी वो क्या होंगी? एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है होगा कि व्हाट आर लेजिस्लेटिव पावर्स, ये तो सर ने बताया ही नहीं, एंड व्हाट आर जुडिशियल पावर्स, ये भी सर ने नहीं बताया है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सो व्हाट आर लेजिस्लेटिव पावर्स? दे आर नथिंग बट द लॉ मेकिंग पावर्स। क्या होती हैं? लॉ मेकिंग पावर्स। एक यहां से एक वर्ड और निकल के आता है, लेजिस्लेशन। व्हाट इज लेजिस्लेशन? सो इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। So what is legislation? It is nothing but the process of law making. And what are legislative powers? The powers of law making enjoyed by the respective legislatures. अगर हम यूनियन पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ जो वो लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लॉज बनाते हैं तो वो यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स हो गए। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होती हैं अगर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लॉज बनाती हैं तो हमने क्या बोल दिया? स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई उनकी। नाउ what are judicial powers? So on the basis of these laws our judiciary has to deliver their judgments. So they are what? They are judicial powers. तो अगर हम इन दोनों पावर्स को निकाल देते हैं, अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स को निकाल दें और अगर हम जुडिशियल पावर्स को निकाल दें तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? हमारे हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर्स बचेंगे। ऐसा किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला था। The residual of legislative and judicial powers are what? The executive powers. अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा हुआ है पॉलिसी मेकिंग और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 54. So my dear friends, this article 54 this deals with the election of a president. So how the president of India is elected? He is an indirectly elected head of the nation. इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। He is not a directly elected head of the nation. इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं हम लोग हमारे राष्ट्रपति जी का। तो जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं they cast their vote on behalf of us. So मैं यहाँ पर बात करूंगा लोकसभा मेंबर्स की, राज्यसभा मेंबर्स की। स्टेट्स में हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और कुछ स्टेट्स में हमारे पास सेकंड हाउस भी होता है जिसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग विधान सभा बोलते हैं। तो मैं बात करूंगा कि ये जो सभी मेंबर्स हैं किस किस के? लोकसभा के, राज्यसभा के, असेंबलीज के और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। ये हमारे बिहाफ में ये क्या करते हैं? अपना वोट कास्ट करते हैं और राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये राष्ट्रपति जी का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ये। अब ये जो सभी मेंबर से मिलके बनेगा ये क्या होगा? हम इसको क्या बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो थोड़ी सी हम बात करें पहले वापस से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। सो हाउ मैनी मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन केस ऑफ लोकसभा इज 552। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये कैसे कहां से इलेक्ट होकर के आते हैं? सो आउट ऑफ दीज 552 मेंबर्स, 530 दे आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स। आउट ऑफ दीज 552, 20 members they are elected from union territories, and 2 members they are nominated by the President of India from Anglo-Indian community. So in case of Rajya Sabha, we have the maximum strength of 250. Out of these 250 members, 238 they are elected from states and union territories, and 12 members they are nominated by the President of India from the various fields of arts, literature, social services, etc. तो मैंने आपको ये एक स्ट्रक्चर बताया है ना। लोकसभा में 530 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट से चुन करके आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से हम लोग चुनते हैं, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं। कहाँ से नॉमिनेट करते हैं? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से, आंग्ल भारतीय समुदाय में से। अब राज्यसभा में मैंने आपको क्या बताया, 238 सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहाँ से? विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कला, विज्ञान इत्यादि, साइंस वगैरह से। तो ये जो इलेक्टेड के अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इन पर मुझे जोर देना है। ये जो 2 सदस्य जो लोकसभा में आ रहे हैं और जो 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होकर के आ रहे हैं, नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो ये तो थी लोकसभा और राज्यसभा की बातें। अब मैं बात करूंगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स में भी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 member is nominated by the governor, respective governor of the state from Anglo-Indian community। तो हर एक असेंबली में, हर एक स्टेट की असेंबली में एक सदस्य को वहाँ के राज्यपाल, गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं। इसी तरह से इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1/6 members of legislative council they are nominated by the governor of the respective state from the various fields of arts, literature, social services, etc. So in case of states also, these nominated members एक जो विधानसभा में मनोनीत होकर के आ रहे हैं, और 1/6 मेंबर जो काउंसिल में यानी विधान परिषद में मनोनीत कर रहे हैं गवर्नर, they are not allowed to cast their vote in presidential elections. Other than this, we have 2 union territories also, where we have legislative assemblies. One is Delhi and another one is पुडुचेरी। पहले इसको हम लोग पौंडीचेरी बोला करते थे, नाउ द नेम हैज बीन चेंज। अब इसको हम लोगों को क्या बोलना है? पुडुचेरी बोलना है। सो दीज आर द 2 यूनियन टेरिटरीज वेयर वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो। तो यहाँ के भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट डिबार्स एनी मेंबर टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी सदस्य को, किसी भी मेंबर को एक से अधिक बार चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना नहीं करता है। तो सपोज करें आज मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया और मैं अगले टर्म में फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़ा हो जाता हूं। तो ऐसी स्थिति में जिन्हें मैंने लास्ट टर्म में नॉमिनेट किया था, उनका वोट तो मेरी तरफ ही झुकेगा। वो तो यही सोचेंगे कि क्यों ना हम सक्सेना जी को ही वोट दे दें और ये हमें अगली बार फिर से नॉमिनेट कर देंगे और हम लोग फिर से लोकसभा, राज्यसभा में मेंबर्स बन जाएंगे। बट वी वांट टू हैव द वोटिंग इन एन अनबायस्ड मैनर। इनके वोट्स जो है अनबायस्ड नहीं होंगे, इनके वोटिंग जो है बायस्ड होने के ही ज्यादा चांसेस बनेंगे। दैट इज वाई द नॉमिनेटेड मेंबर्स दे आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। चलिए अब मैं आपको पीपीटी में भी ये चीजें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं।
So the elected members of both the houses of parliament, यहाँ पर इलेक्टेड वर्ड मैंने खास करके लिख दिया है। अगर एग्जाम में आपको इलेक्टेड वर्ड नहीं लिखा आता है तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको, सेंटेंस को, दी मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेंबर्स में तो सारे मेंबर्स आ जाएंगे भैया, इलेक्टेड भी आ जाएंगे और नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा फिर। तो यहां पर वर्ड इलेक्टेड होना जरूरी है। इन द सेम मैनर फॉर स्टेट्स ऑल्सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यहां पर भी वर्ड इलेक्टेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नॉमिनेटेड भी उसमें काउंट हो जाएंगे। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यहां मैंने लिख दिया है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ट्विस्ट करते हैं एग्जामिनर, यहां वर्ड इलेक्टेड नहीं लिखेंगे वो और आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कृपया करके इस बात पर जरूर ध्यान दें एग्जाम्स में ना। कुछ और बातें इलेक्शन से रिलेटेड आप लोग यहां समझिएगा। इफ एनी डिस्प्यूट इज देयर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, then the Supreme Court of India is authorized to intervene in the matter। अगर कोई डिस्प्यूट आता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही इस मैटर में, इस डिस्प्यूट में इंटरवीन करने के लिए अथोराइज्ड है। कोई और अथॉरिटी, कोई और कोर्ट इस मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकती है। अदर देन दिस नो पिटीशन कैन बी फाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसीज इन एन इलेक्टोरल कॉलेज। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसीज इन इलेक्टोरल कॉलेज नो पिटीशन कैन बी फाइल्ड से, यहां क्या लिखा है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है तो आप कोर्ट में पिटीशन नहीं कर सकते हैं, पिटीशन नहीं लगा सकते हैं। समझ लीजिए इसको। से सपोज करिए पंजाब या छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य में कुछ सीट्स खाली हैं और उनके लिए अभी इलेक्शन नहीं हो पाए हैं, तो आप ये कहते हुए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं कि वहाँ की सीट्स खाली थी तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, कंप्लीट नहीं था, इसीलिए जो इलेक्शंस हुए हैं इनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इस आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अदर देन दिस से इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, the acts of the president till the declaration cannot be invalidated। से सपोज करिए राष्ट्रपति के चुनाव के 6 महीने के बाद अगर इन चुनावों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उनको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है, उनको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ लॉजिक क्या बनता है कि भैया इलेक्शन प्रोसेस में कोई खामी होगी, कोई गलती रही होगी, है ना, राष्ट्रपति जी में उनमें हमने कोई गलती नहीं देखी है, किसी गलत व्यक्ति को हम नहीं उठा करके लाए, हम ना चुन करके लाए हैं। इसके अलावा वी हैव टू एट द सेम टाइम मेंटेन दी सोवर्निटी ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे इतने बड़े राष्ट्रपति के पद की गरिमा हम कैसे बना पाएंगे। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल 54। नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 55 which deals with the manner of the election of the President of India. So the President is elected by the system of proportional representation by a means of the single transferable vote. So the voting is done by the secret ballot. तो क्या होता है, एक secret ballot होता है और जितने भी उसमें कैंडिडेट्स होते हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनके वहाँ पर नाम होते हैं। जैसे हम लोग आम चुनाव, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव की बात करें तो वहाँ पार्टीज के नाम होते हैं और उन पार्टी के सिंबल के आगे आपको ईवीएम का बटन प्रेस करना होता है, या पहले जब ईवीएम नहीं होती तो उसके आगे ठप्पा लगा करके, सील लगा करके आना होती थी। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्या होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर में मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। सपोज करिए ए बी सी, ये 3 कैंडिडेट्स वहां पर इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उन तीनों कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं। अब जो मेंबर्स जो हैं जो अपना वोट कास्ट करने जाते हैं उनको क्या करना होता है, उनको प्रेफरेंसेस देना होता है वोटिंग में। अब सपोज करिए मैं अपना वोट डालने जाता हूं तो मैं बी मेंबर को पहला वोट डालता हूं, मैं उनको पहला प्रेफरेंस देता हूं तो उनके नाम के आगे मैं फर्स्ट लिख दूंगा।
मान लीजिए सेकंड नंबर पर मुझे ए व्यक्ति पसंद है, तो मैंने ए को सेकंड नंबर दे दिया, सेकंड नंबर 2 नंबर लिख दिया, और सी व्यक्ति मुझे थर्ड नंबर पर पसंद है, मैंने उनके आगे 3 नंबर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम हो गया। यहाँ हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते, हमको एक पार्टी को एक वोट डाल के आना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब किस व्यक्ति को हम लोग चुनाव में जीता हुआ घोषित करते हैं, जो कि 50% मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट उसको मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि ABC में से किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके वोट्स को, जिनको के थर्ड प्रेफरेंशियल ऑर्डर के जो वोट्स मिलते हैं, उनके वोट्स को बाकी दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्या बन जाए, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये तो था उनके वोटिंग प्रोसेस के बारे में। अब जब ये नॉमिनेशन फाइल होता है, the nomination of a candidate for election to the office of the president must be subscribed by at least 50 electors and 50 as proposers and 50 electors as seconders। तो यहाँ 50 जो है एज प्रपोजर्स होंगे और 50 जो है एज सेकेंडर्स होंगे, तब जाकर के आप जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। यही नहीं, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द RBI। तो ये बात तो आप लोग जानते हैं कि आज तक केवल एक ही व्यक्ति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, एंड ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज आर्टिकल 56, which deals with the term of the President of India, the term of office. So article reads as term of office. So we know that the President of India shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters his office. So other than this, he can be removed from his office on violation of the Indian Constitution under article 61. अब यहाँ कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 61 और आर्टिकल 56 तो वो पकड़ के ही नहीं रखते हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते यहाँ पर। तो आर्टिकल 56 में और 61 में थोड़ा सा आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पर आर्टिकल 61 में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट दिया हुआ है, और आर्टिकल 56 क्या करता है, क्या कहता है, इट सेज दैट ही कैन बी रिमूव्ड, द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड ऑन वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61। तो उनको हम, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, अगर संविधान के प्रावधानों का वो उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें हम आर्टिकल 61 के तहत उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो हटाने की जो प्रक्रिया वो आर्टिकल 61 में दी हुई है, इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। वो अभी हम लोग आर्टिकल 61 में आएंगे और मैं आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस by giving his resignation to the Vice President of India. Now at the same time the President can resign by giving his resignation to the Vice President of India. तो जब ऐसा होता है, at that time it becomes the duty of the Speaker to communicate that the President has tendered or addressed his resignation in the Lok Sabha or the House of the People। जब भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस बात की सूचना लोकसभा में दें कि हमारे राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आता है, इसलिए आप लोग इस बात पे ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 57 which deals with eligibility for re-election। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि our constitution doesn't divorce any person to contest presidential elections any number of times। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति को अनेक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना नहीं करता है। तो एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 57 इज। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल 58 which deals with the qualifications of a president। So this is very simple article to understand। So what are the qualifications given in the Constitution of India? The number 1 is he must be a citizen of India। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। He must have completed the age of 35 years। उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
द थर्ड वन इज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई लाभ का पद ना हो। ये मैं भी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, कुछ अपवाद होते हैं लाभ के पद में। एंड फोर्थ वन इज ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा सदस्य होने की पात्रता होना चाहिए। नाउ रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये मैंने आपको कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस। नंबर वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर टू इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर थ्री गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, नंबर फोर इज मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड नंबर फाइव इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। सो दीज ऑल कैन कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम देयर पोस्ट। ये सभी अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो इनको हम लोग लाभ के पद में नहीं रखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट, ये सभी अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। सो दीज ऑफिसेज दे डोंट कम इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 60, 58 के बाद मैं 60 डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आर्टिकल 59 पर वापस आऊंगा। आप लोग ये मत सोचिएगा 59 तो छूट ही गया है। सो आर्टिकल 60, अब उनका हमने क्वालिफिकेशंस देख ली, अब हम देखते हैं कि उनको शपथ कौन दिलाता है। सो द ओथ टू द सीक्रेसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is administered by the Chief Justice of India and in his absence by the senior most judge of the Supreme Court of India। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं वो उन्हें उनके पद की शपथ दिलाते हैं अंडर आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नाउ this is what about article 60, and now moving on to article 59 which deals with the conditions and privileges of the president's office. So number one thing is the president shall not be member of either house of parliament or the either house of the state legislature। प्रेसिडेंट जो है ना ही लोकसभा के, ना राज्यसभा के और ना ही किसी असेंबली या काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। Then other than this he shall be entitled without payment the rent और द यूज़ ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस, तो उनको बिना किसी रेंट के ऑफिशियल रेजिडेंस का भी लाभ मिलता है। अदर देन दिस ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो उनको वो वेतन, भत्ते, सुख सुविधाएं मिलेंगी जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती हैं। हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो इनको जो भी वेतन, भत्ते, सुख सुविधाएं दी जाती हैं उनके कार्यकाल के दौरान उनको डिमिनिश्ड माने उनको कम नहीं किया जा सकता है। अदर देन दिस ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी ऑफ हिज ऑफिशियल एक्ट्स, तो ये हम लोग और अभी जब आर्टिकल 361 पढ़ेंगे उसमें हम ये क्या कैसे पर्सनल इम्यूनिटी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 61 which deals with the impeachment process of the president of India। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था the ground given in constitution for his removal is the violation of Indian constitution। तो क्या ग्राउंड, क्या आधार दिया हुआ है? on violation of Indian constitution he can be removed from office by the impeachment process given in article 61 of Indian constitution। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है ये किसी भी हाउस में आ सकता है। ये लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी ये इनिशिएट हो सकता है। जिस हाउस में ये इनिशिएट होता है दैट हाउस इज नोन एज द ओरिजिनेटिंग हाउस। उस हाउस को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटिंग हाउस बोलते हैं। तो जिस हाउस में ये ओरिजिनेट होता है इट शैल बी पास्ड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स। अगर 1/4 उसके मेंबर्स उसको पास कर देते हैं तो ये मोशन आगे बढ़ेगा। देन अ 14 days प्रायर नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि आपके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन आ चुका है,
आप अपने को डिफेंड करने की आप तैयारियां कर लीजिए। आफ्टर दिस, इफ द ओरिजिनेटिंग हाउस passes the impeachment motion by 2/3 of the total membership of the house, 2/3 of the total membership of the originating house। अब किस मेजोरिटी से originating house में ये पास करना है? 2/3 of the total membership of the house, then it moves to the second house। अगर ये first house में इस मेजोरिटी से पास हो जाता है तो ये second house में चला जाएगा। The second house investigates the charges framed on the President of India, and if the second house also passes the same motion by 2/3 of the total membership of the house, then the president stands impeached। आज तक किसी भी भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा इम्पीचमेंट मोशन नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि सर किसको आज तक भारत में किस व्यक्ति को, किस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है, तो ये मोशन ही नहीं आया अभी तक। So my dear friends, this was my first lecture on Union Executive। अब आगे जो मेरे रेस्पेक्टिव लेक्चर्स होंगे उसमें मैं प्रेसिडेंट के पावर्स को डिस्कस करूंगा। सो वी नो दैट ही एंजॉयज वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्स सच एज एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। टिल देन, सी यू, टाटा, बाय बाय।